Good morning, everyone. Good morning. Yeah, good morning. Myself Nitin Aviral, PGT Computer Science from Kendriya Vidyalaya Tagore Garden. Came here for informatics practices class. Yesterday we have discussed about little bit about operators, and today we will move forward in the operators because there are so many kind of operators, and we just studied about the arithmetic operator as well as there are some bitwise operator and shift operator. After that we reach to relational operator. So now today we will discuss the relational operator, logical operator, membership operator. Okay, so these are the various operators we will go through it, and we will learn how it works, how these operators work. Now I am moving to my PPT now. Okay, hopefully you will learn it well. We are probably we are doing this on the second Saturday day, but I think most of you will learn something new every day and do the practice of whatever you learn in the class. It is more important to practice rather than only listening. So listen, I take very short classes, though it seems 1 hour class, but it is not 1 hour exactly, because I teach very less content, so that you will not get any kind of fear about this content, because this is not the content which you can mug up. You have to do the practice. For that I have given you the option to install an app in your mobile, Pytroid app. Hopefully you have installed that. आप सभी ने इंस्टॉल कर लिया? यस, आप इंस्टॉल कर लीजिए सभी लोग, ठीक है? बिकॉज अगर हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उसको प्रैक्टिकली समझ नहीं पाएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन. हम सिर्फ थियोरेटिकल नहीं जा सकते. इट्स ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड यू हैव टू मेक द थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन. You have to do practice of it. So whatever questions I have given to you, I have given you 6 programming questions, and you can do all these questions. I have given three questions का तो मैंने आपको आउटपुट पूरा प्रोग्राम ही बताया था, and rest 3 I gave you the idea of it. I give you the process. What will be the process in it. तो मैंने इतनी चीज़ें आपको दे दी थी, अभी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स की बात. तो अब हम ऑपरेटर शुरू करते हैं. चलिए आइए शुरू करते हैं. हम पहुंच गए रिलेशनल ऑपरेटर पर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या थे? हमने बताया था आपको कि रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेटर के बीच में रिलेशन सेट करते हैं. कैसे सेट करते हैं? जैसे आई टोल्ड यू x इज ग्रेटर देन 9. x greater 9. If I wrote x greater 9, then what does it mean? X greater 9 means there is a checking that the value of x is greater than 9. This is a question. इसी तरीके से if I say x is less than 5, so it's a question that is x less than 5. How will you write? You will write इन पाइथन कमांड शेल, ठीक है? अभी आएंगे उस पर, तब देखेंगे. नाउ द वन मेजर थिंग इज लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू. यहाँ तक तो आपको सब क्लियर है. नाउ दिस डबल इक्वलिटी. डबल इक्वलिटी मीन्स, डबल इक्वलिटी जो है वो चेकिंग करती है और रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स. डबल इक्वलिटी और सिंगल इक्वल दोनों में अंतर है. डबल इक्वल में इक्वालिटी चेक होता है, सिंगल इक्वल में असाइनमेंट होता है. सपोज आई रोट x is equal to 5, so now the value of literal 5 is assigned to x. If I wrote x is equal to 5, if I wrote x double is equal to 5, then the whatever will be the value of x will be compared with the value of 5. Okay, so there is a difference between equal and double equal to symbol. Okay, practically we will see to it.
Next is not equal to. Not equal to is what? It's a two value. If two value is not equal to each other, want to check that, then not equal to. जैसे x is not equal to 0, तो हम चेक कर रहे हैं क्या x 0 नहीं है, तो जब बराबर नहीं होगा तभी ट्रू देगा, और जब बराबर होगा तो वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी आपको इक्वल टू और डबल इक्वल टू के बारे में बता देते हैं। एक बार पाइथन शेल पर चलते हैं, पाइथन शेल पर चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। यहाँ देखिए, पाइथन शेल पर आए, हमने लिखा x इक्वल टू 8। ये आपका क्या है? इक्वल टू है, यानी कि असाइनमेंट सिंबल है। द वैल्यू ऑफ x हैज बीन चेंज एंड इट बिकेम 8। कैसे पता चलेगा? प्रिंट एंड देन 8, sorry, print x, print x. Now the value of x is 8. So now you came to know that 8 has been assigned to x. Now we will check x double equal to 8. Now you got true. Why it is true? Because you have given x as 8 in the previous statement. You have given x is equal to 8. So the value of 8x is 8 now. And when you put the value here, it become 8 double is equal to 8. Yes, then that's why it's a true. If I wrote x double is equal to 5, you will get what? You will get false. Reason, x value is 8, 8 double equal to 5. No. So that's why it's a false. So now it's very clear by equal to and double equal to symbol. Equality symbol is used to assign values to a variable, whereas double equal to symbol do the comparison between two values. Okay, clear है? सभी को clear हो गया होगा ये। Now next आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। अब पहला क्वेश्चन आता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर तो हमने देख लिया, एंड और एंड नॉट। ठीक है, तीन है। इन तीनों ऑपरेटर में क्यों इस्तेमाल होता है इनका? पहली चीज आती है इनका इस्तेमाल क्यों होता है। तो जैसे रिलेशनल ऑपरेटर का यूजेस था कि वो दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन सेट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज था कि वो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का पर्पस क्या है? जब दो या दो से अधिक कंडीशंस होती हैं, व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू कंडीशंस, देन यू यूज लॉजिकल ऑपरेटर। उनको ज्वाइन करने के लिए, उन कंडीशंस को ज्वाइन कराने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे सपोज मैंने चेक करना कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और 60 से छोटी हो, तो आप क्या करोगे? 1 से बड़ी होनी चाहिए और 60 से छोटी होनी। अब यहाँ पर कंडीशन दो बन गई, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी लेस देन 60। क्या? तो एंड और कब यूज करेंगे, एंड कब यूज करेंगे, ये भी बात करते हैं अभी। तो अभी प्रैक्टिस चलते हैं। यहाँ पर आपने ये स्क्रीनशॉट देख लिया है, इसमें हमने एंड और नॉट की लिस्टिंग की है। इसको यूज़ कैसे करते हैं वो अब हम पाइथन सेल पर ही देखेंगे। ठीक है, पाइथन सेल पर चलते हैं और ये आ गए हम पाइथन सेल पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 60। क्या आएगा बताइए? ट्रू आएगा। ट्रू आ गया। क्यों आया? क्योंकि x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने ऊपर? 8। x इज ग्रेटर देन 1 हो गया, 8 इज ग्रेटर देन 1, यस। 8 is less than 60, yes. In both the cases, if all the cases are yes, only then it will give yes value or the true value. ठीक है, सभी केसेस में, इस केस में भी जितनी भी कंडीशंस हैं सब में ट्रू आएगा, तभी रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सपोज आई गिव 0, x इज इक्वल टू 0, मैंने वैल्यू दे दी। अब x की वैल्यू चेंज हो चुकी है, पहले x की वैल्यू 8 थी, अभी x की वैल्यू देखो आप क्या है? 0। अब मैं यही स्टेटमेंट दोबारा देता हूँ, आपकी रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों आएगा फॉल्स? क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 0। 0 इज ग्रेटर देन 1, नो। नो हुआ मतलब फॉल्स। 0 इज लेस देन 60, यस।
yes means true, false and true becomes false. अभी अभी मैंने आपको बताया, if all the conditions in a given statement, given expression is true, then only result of and becomes true. एंड के रिजल्ट केवल तभी ट्रू होते हैं जब उसमें दी गई सभी कंडीशंस ट्रू होती हैं। ठीक है, अब इसी काम को और से करते हैं। x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 60। अब क्या रिजल्ट आएगा? अभी ट्रू आ जाएगा। क्यों आया ट्रू? देखिए, 0 इज ग्रेटर देन 1 फॉल्स, 0 इज लेस देन 60 ट्रू। इफ एनी ऑफ द कंडीशन, इसकी बात होती है जब और की, तो कहते हैं इफ एनी ऑफ द कंडीशंस इन अ गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। एनी ऑफ द मतलब कोई भी एक कंडीशन हुई अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, ये ट्रू हो जाती है तब भी ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू हो जाती हैं तब ट्रू आएगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तब सिर्फ फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एंड और काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नॉट वन, नॉट ऑपरेटर, क्या आएगा? फॉल्स। नॉट वन मतलब नॉट ट्रू, वन स्टैंड फॉर ट्रू एंड जीरो स्टैंड फॉर फॉल्स। नॉट जीरो, क्या आ गया? ट्रू। तो नॉट ऑपरेटर निगेट करने का काम करता है, मतलब अपोजिट साइड की बात करता है। जब हमने लिखा नॉट वन तो उसने दे दिया फॉल्स, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। जब हमने लिखा नॉट जीरो, इसने रिटर्न किया हमें ट्रू। नॉट जीरो का मतलब नॉट फॉल्स, तो इट मीन्स ट्रू। क्लियर? यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सभी को? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकता है या फिर डाउट फॉर्म में लिख सकता है। ठीक है, as soon as I will see it I will respond to you. During the video it is not possible to respond because I am recording this video. ठीक है, and at this point of time it is very difficult to give answer because as you have not seen yet. ठीक है, I am recording it right now and you will see it at 12 p.m. So better you ask your queries in the doubt form. That will be much better and I will be able to respond you according to your queries. Okay, next is एंड और नॉट। समझ में आ गया आप लोगों के? यस। के बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि डबल इक्वल टू, और जब इक्वल टू आया था डबल इक्वल टू के बारे में बताया था मैंने। ये इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर है, मतलब जो कंपैरिजन करता है, पर इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी होते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये कैसे काम करते हैं? इसका मतलब होता है, जैसे आपने लगाया है ये वाला लेते हैं पहले, प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है? प्लस इक्वल टू का मतलब अगर मैंने लिखा x प्लस इक्वल टू 5, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू x प्लस 5, बोथ विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या सिंबल बन गया, सिंटैक्स क्या बन गया? ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेंड, ऑपरेटर इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो इसको यूज़ करके देखते हैं। जब तक यूज़ नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे इसको? भाई पाइथन सेल में जाएंगे, पाइथन सेल में पहुँच गए अब हम, और अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सेल को रिस्टार्ट करते हैं, सेल की
चलिए कोई नहीं, यही करते हैं फिर। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब दिखाई। अब देखिए, हमें चाहिए कि अभी जो हमने पढ़ा है स्टार्ट एंड ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बारे में बात करते हैं। हमने लिखा नॉर्मल, लिख दिया x इक्वल टू 5। हमने लिखा x प्लस इक्वल टू 10। अब रिजल्ट क्या आएगा x का? अगर हम प्रिंट करें x को, तो प्रिंट करते हैं x को, तो क्या रिजल्ट आएगा? 15 आएगा। क्या मतलब हुआ? x प्लस इक्वल टू 10 का मतलब है, मीन्स x इज इक्वल टू x प्लस 10 का मतलब ये है। ठीक है, x प्लस इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब हो गया? x इज इक्वल टू x प्लस 10, मतलब द प्रीवियस वैल्यू ऑफ x was 5, ये 5, and now when it placed here, then it became 15 and x has been assigned 15, so the value of x becomes 15। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपको क्लियर हो गए होंगे। हाँ, इसमें अब अलग अलग ऑपरेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे अभी आपको हमने प्लस का करके दिखाया, ऐसे ही आप माइनस इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस इज इक्वल टू 10 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। इसी तरीके से इंटू इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? x इंटू इक्वल टू 5 लिखा है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, मतलब कोड को थोड़ा शॉर्ट करने का काम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब होता है किसी लिस्ट में, किसी सीक्वेंस में किसी वेरिएबल की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, और नहीं, बस ये भी चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं है, वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस और नॉट। इन ऑपरेटर से पता, वेदर वेरिएबल नॉट इन सीक्वेंस, ये भी पता चलता है। तो नॉट इन कर देंगे तो वो नॉट इन ना होने पर ट्रू देगा, और इन करेंगे तो वो उसके एग्जिस्ट करने पर ट्रू देगा। प्रैक्टिकली समझना चाहोगे तो फटाफट प्रैक्टिकली देख लेते हैं। स्क्रीन पर आ जाइए, पाइथन सेल पर, पाइथन सेल पर आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार पाइथन सेल को बंद कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई देगा आपको। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने लिखा इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। तो मैं एक एक्स इन, पहले x इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ, x इक्वल टू 7 लिखा मैंने। ठीक है, अब मैं लिख लूँगा एक्स इन, एक लिस्ट बना देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वो ये देख रहा है कि x इसके अंदर इस सीक्वेंस में है या नहीं, ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ठीक है, अब मैंने लिखा x नॉट इन, और यही सीक्वेंस दोबारा लिख दी, 2, 3, 4, 5, 6। इट्स ए लिस्ट जो मैंने अभी दिया है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारा फोकस किस पर है? इन पर और नॉट इन पर। यहाँ क्या देगा? नॉट इन फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स दिया? हम कह रहे हैं 5 नॉट इन 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इस सीक्वेंस के अंदर 5 नहीं है। हम चेक कर रहे हैं तो 5 है, इसलिए इसके केस में क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसके केस में तो 5 है ना, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं x मतलब 7, 7 इस लिस्ट में है या नहीं है, चेक कर रहे हैं। तो 7 इस लिस्ट में है, यस है, तो इसमें ट्रू आ गया। 7 इस लिस्ट में नहीं है, इस केस में क्या आ गया? फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। हम कह रहे हैं नॉट इन, हम बोल रहे हैं एक्स नॉट इन दिस लिस्ट। क्लियर है? आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, so you learned it well. Now the next is membership operator के बाद आते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स पर आ गए। ऑपरेटर्स आर ओवर नाउ। तो आपने कौन कौन से ऑपरेटर सुने? अरिथमेटिक ऑपरेटर सुने, लॉजिकल ऑपरेटर सुने, मेंबरशिप ऑपरेटर सुने, शिफ्ट ऑपरेटर सुन लिए,
और आपने बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। इन ऑपरेटर्स की एक प्रेसिडेंस होती है, प्रेसिडेंस अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? These are the symbols that are used in programming language to organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression statements and program structure. एक्चुअली कॉमा, देखिए वैल्यू सेपरेटर के लिए, सेपरेशन के लिए क्या लगाते हो? कॉमा लगाते हो। टपल बनाना है आपको, क्या लगाओगे? ब्रैकेट लगाओगे, पैरेंथेसिस जिसे हम कहते हैं, सबसे स्मॉल ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं उसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो पैरेंथेसिस लगाते हैं। कहीं कहीं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट का इस्तेमाल भी करना होता है क्वालिफाइड नेम लेने के लिए। डबल कोट्स का आप स्ट्रिंग में ही इस्तेमाल करते हैं। हैश का आप इस्तेमाल करते हैं कमेंट लिखने के लिए। तो ये अलग अलग तरीके के सिंबल्स हैं, इनको आप पंक्चुएटर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनके कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं, उन यूजेस के आधार पर इनको पंक्चुएटर बोला गया है। और सभी तरीके के पंक्चुएटर इस्तेमाल नहीं हो सकते, कुछ सभी तरीके के सिंबल इस्तेमाल नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको नाम दिया गया है पंक्चुएटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक। बेयर बोन्स मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। आप यहाँ सबसे ऊपर वाली दो लाइनें देखिए, क्या लिखा है? दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू एल फॉलोज। तो ऊपर के ये जो दो स्टेटमेंट हैश से लगे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो कमेंट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? कमेंट्स। क्यों बोल रहे हैं कमेंट्स? आपको याद होगा, अगर हमने रिवीजन जब हमने इसका बेसिक पढ़ा था, पाइथन का इंट्रो पढ़ा था, तब हमने कमेंट्स डिस्कस किया था। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड, इनको पाइथन इग्नोर कर देता है। पाइथन जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर कहते हैं उसे, पाइथन इंटरप्रेटर इनको इग्नोर करता चलता है, मतलब इन स्टेटमेंट्स को वो नहीं पढ़ता, एग्जीक्यूट नहीं करता, आप ऐसे कह दीजिए, एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। डेफ सी यू, ये एक फंक्शन बनाया है, कैसे बनाते हैं इसको अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि डेफ कीवर्ड से इन्होंने सी यू नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने प्रिंटिंग का काम किया, ठीक। किसी प्रोग्राम में ये भी हो सकता है, हालांकि हम बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो बेसिक प्रोग्राम में यहाँ आ जाइए मेन प्रोग्राम से। सबसे पहले एक वेरिएबल असाइनमेंट किया गया, फिर एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें पिछले वेरिएबल में 20 ऐड किया गया। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक थर्ड वेरिएबल बनाया जिसमें हमने ए और पी प्लस बी ऐड किया, तब ए और बी को ऐड किया, और अब हमने यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर लगाया जिसकी हेल्प से हम कंडीशन चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन की कॉलिंग की है। हम प्रोग्राम आपको बता चुके हैं, इसलिए ये बेसिक प्रोग्राम आप देखें, फंक्शन को अभी ना ही देखें तो अच्छा है, बाद में डिस्कस कर सकते हैं बारे में, ठीक है। तो हमारा बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर में तीन ही चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट है। बीच में कंडीशनल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगते हैं। जब लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट पर पहुंचेंगे तो उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन क्या होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। यहाँ बोलता है एन एक्सप्रेशन इज एन एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ symbols that represent a value. A expression, an expression is generally a combination of operator and operands, ठीक है। तो ये हमारी वाली डेफिनेशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू 20,3.14, ये तो सिर्फ वैल्यूज का एक्सप्रेशन है। जनरली हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस ए वैल्यू a प्लस 10, ये क्या एक एक्सप्रेशन है। जब हमें a की वैल्यू मालूम होगी तब हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सपोज a इज इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट 20। इसी तरीके से हेयर दे हैव गॉट द 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी निकालने के लिए इन्होंने लिखा है सैलरी इंटू 10 अपॉन 100।
तो अभी अगर हमें सैलरी कितनी है किसकी क्या पता, तो जब कोई अपनी सैलरी पुट करेगा इसमें तो उसका 10% निकाल देगा ये। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जब रिजॉल्व होते हैं, जब उनको इवेलुएट किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, किसी की सैलरी 1,000 रुपये है तो 1,000 का 10% निकाल देगा ये। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट्स। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट इज रिटन इन ए प्रोग्राम। चूंकि आप प्रोग्राम ही कर चुके हो तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको ईजी लगने चाहिए। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इट इज़ ए सेट ऑफ इट्स ए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डू सम एक्शन ना, जो कि कुछ एक्शन करेगी। क्या करेगी, जैसे यहाँ लिखा है प्रिंट वेलकम टू पाइथन। जब हमने लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन तो ये स्टेटमेंट आपको वेलकम टू पाइथन मैसेज प्रिंट करके देगा। इसी तरीके से अगर हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू a प्लस 10, तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 बन जाएगी, क्योंकि तो a की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर यूज की जाए। स्टेटमेंट क्लियर है। स्टेटमेंट के बाद आते हैं कमेंट्स। ये पढ़ लीजिए। एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर दो तरीके के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। प्रोग्राम अंदर एक प्रोग्राम के साथ टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। वन इज द इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, अनदर वन इज एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। आप कोई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद के लाते हैं तो उसके साथ भी डॉक्यूमेंटेशन आता है ना। ठीक है, जैसे आप गेम्स की सीडी लेकर आए तो गेम्स की सीडी पर एक लेबल लगा रहेगा और उसमें डिटेल लिखी होंगी कि कितने एमबी की इसको रैम चाहिए, कितना प्रोसेसर चाहिए, मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी रहती है। वो क्या है उसका, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन है। कि अगर आप शॉप पर गए हैं तो आपके पास सिस्टम थोड़ी है उस समय, आप कि चला कर देख लेंगे। आप क्या करेंगे, उस डिवाइस, उस सीडी पर जो लेबलिंग कर रखी है उसको देखेंगे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए उसको परचेस करेंगे। ठीक, इसी तरीके से जैसे उसमें इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है, गेम्स के अंदर जैसे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। ये तो लेबल पर, सीडी पर जो लेबल लगा है, सीडी के लेबल के अंदर जब आप उसे एग्जीक्यूट कराते हो तब भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं। आपने देखा होगा हेल्प आती है, जैसे शॉर्टकट कीज आती है। वो क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको बता रहा है कि प्रोग्राम कैसे रन कराना है, शॉर्टकट कीज क्या हैं, स्टेप्स कैसे होंगी। तो ये कुछ चीज़ें वो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में डालते हैं। ऐसे ही जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम हम थर्ड पार्टी के लिए बनाते हैं बेसिकली। थर्ड पार्टी समझ रहे हैं, किसी, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, हम हम तब जान रहे हैं जब उसने हमसे कांटेक्ट किया और अपनी प्रॉब्लम बताई है, तो हम उसके लिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ठीक, अब हमने उसके लिए प्रोग्राम डेवलप किया, हमने उसको हैंड ओवर कर दिया। अब वो व्यक्ति कैसे समझेगा कि प्रोग्राम कैसे फंक्शन करेगा। एक तो ये, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन आप दोगे कि फंक्शनैलिटी का डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा ये कि 5-6 साल के बाद मान लीजिए हमने तो सेल कर दिया, सेल कर देने के बाद 5-6 साल बाद उस ओनर को, जो जिसने हमसे परचेज किया था, उस सॉफ्टवेयर को चेंज कराना है। मान लीजिए वो हमें नहीं ढूंढ पाया या हम नहीं रहे वहाँ पर, हम कहीं और ट्रांसफ़र हो गए या चले गए। ठीक है, उस केस में वो वो क्या करेगा कि थर्ड प्रोग्रामर को हायर करेगा, नेक्स्ट प्रोग्रामर को, थर्ड पर्सन को हायर करेगा। प्रोग्रामर को हायर करने के बाद वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन उसको सौंप देगा और बोलेगा कि भाई इसको इस लैंग्वेज। तो इस तरीके से है हमारे ये कमेंट्स आपने सीख लिए। ठीक है, 3 तरीके के कमेंट हमने आपको बता दिए। बुक के हिसाब से आप सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसमें बताया आपको फुल लाइन कमेंट, इन लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अब देखिए इसमें कैसे देते हैं इसको, हैश लगा देंगे और लिख देंगे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा। दूसरे केस में देखो इन लाइन कमेंट लिखा है इन्होंने। इन लाइन कमेंट में पहले एक स्टेटमेंट लिखा और स्टेटमेंट के बाद
कमेंट दे दिया। तो एक ही लाइन में स्टेटमेंट भी है, कमेंट भी है, इसे इनलाइन कमेंट कह सकते हैं। उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट हैश का इस्तेमाल करके, ये तो सिंपल है, ये सिंगल लाइन कमेंट्स के बंच हो गए, ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको मल्टी लाइन कमेंट कह रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा मेथड है, वो आप देखिए। हम इसमें ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। मतलब you will write triple quotes and then you can write anything in 2 3 4 5 whatever lines you want to write and then close the triple quotes. It became multi line command. now इन सिंबल्स को देखकर भी आपका जो इंटरप्रेटर है वो इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है। Actually, function is just like program, but only difference is that a program can be broken into smaller subsection, and that subsection is known as function. एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ठीक है। क्यों बांटते हैं? टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर उसको रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, सबसेक्शंस में बांट देंगे। हर सबसेक्शन को हम क्या कहते हैं, ईच सबसेक्शन इज नोन एज फंक्शन। अब इनकी डेफिनेशन पढ़िए। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड that has name and can be reused by specifying its name in the program wherever and whenever needed. जब भी और कहीं, जहाँ कहीं भी अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको इन्वोक कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो फंक्शन स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिनको रीयूज़ किया जा सकता है। रीयूज़ मतलब एक प्रोग्राम में है, अगर आपको वो फंक्शन इस्तेमाल कर लिया है और आपको दूसरे प्रोग्राम में भी वो फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए फंक्शंस को उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से बाहर रखना पड़ेगा, एक ग्लोबल मॉड्यूल में रखना पड़ेगा। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं अभी यहाँ इस लेवल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि फंक्शन होते क्या है। तो हमने कहा स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं और रीयूज़ किए जा सकते हैं। कैसे बनाते हैं फंक्शंस? फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ देखिए नॉर्मल प्रोग्राम के लिए आपने कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। आपने फाइल में ओपन किया, फाइल में न्यू किया एंड देन फाइल मेन्यू में गए, आपने न्यू पर क्लिक किया और आप इस शुरू हो गए थे। जैसे इस केस में आप यहाँ पर फाइल मेन्यू में गए एंड देन न्यू किया और आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू कर दी। बट इन केस ऑफ फंक्शन यू हैव टू पुट अ कीवर्ड डेफ, यू हैव टू राइट अ कीवर्ड डेफ। डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन है। और फिर ये जो है कंपलसरी होते हैं पैरेंथेसिस लगाना। पैरेंथेसिस आप लगाएंगे और कोलन लगाएंगे। यहाँ कोलन क्या बता रहे हैं कि ये कोलन पंक्चुएटर्स अभी आपने पढ़े थे ना, पंक्चुएटर्स में आता है। तो आपने यहाँ पर इसकी लाइन को कंटिन्यू है, यहाँ पर ये बताएंगे, ठीक है। फिर आपने प्रिंट स्टेटमेंट में ये लिख दिए हैं, एक लाइन प्रिंट करना चाहते हैं आप इस तरीके से। फिर इन्होंने लिखा प्रिंट वेलकम। अब ये मेन प्रोग्राम शुरू हो गया यहाँ से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉ लाइन कॉल किया जा रहा है। इसका मतलब मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, वेलकम टू पाइथन। फिर ड्रॉ लाइन को इन्वोक किया गया तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी कॉल, और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मतलब ड्रॉ लाइन के वेलकम टू पाइथन के बाद आपके पास ये लाइन आएगी। फिर आएगा प्रिंट डिज़ाइंड बाई क्लास 11 और फिर ड्रॉ लाइन, फिर ये लाइन आ गई। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ड्रॉ लाइन को, अगर ये लाइन ड्रॉ करने का काम हमें बार बार करना है तो हम बार बार इन्वोक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना होता, ये स्टेटमेंट बार बार लिखने होते। अभी यहाँ तो एक ही स्टेटमेंट है, ऐसे अगर मल्टीपल स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर होते तो क्या आप बार बार यहाँ लिखते? बेटर आइडिया क्या है? बेटर आइडिया है कि हम फंक्शन का इस्तेमाल करें। और फंक्शंस को चूँकि रीयूज़ किया जा सकता है, रीयूज़ करने के लिए आपको उसको कॉल करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। व्हाट इज दिस दिस इज नोन एज फंक्शन कॉलिंग। यहाँ भी आपकी क्या हो रही है, फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। तो वट एवर नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट टू कॉल, यू कैन कॉल द फंक्शन इन ए प्रोग्राम, ठीक है। फंक्शन क्लियर है? A function is a small block of code that can be invoked
whenever and wherever required. It is created with the help of def keyword. ठीक, नेक्स्ट आता है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. ये भी समझ लेते हैं ब्लॉक क्या होता है. ब्लॉक इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स written within the same written within a same indentation level. एक ही इंडेंटेशन लेवल पर अगर स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो उसको ब्लॉक कहते हैं. कहता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज ब्लॉक जस्ट लाइक फंक्शन. बट इसमें नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती. फंक्शन में नाम देने की जरूरत पड़ती है. डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल होता है. ठीक, तो अब यहाँ एग्जांपल से देखें तब समझ में आएगा आपको. यहाँ पर डेफ एरिया ये क्या है, फंक्शन है. फंक्शन यहीं खत्म नहीं हुआ, ये फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक खत्म हुआ. तो ये फंक्शन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म हुआ. लेकिन ये जो 3 लाइनें हैं, ये a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू a इंटू v, ये जो 3 लाइनें हैं ये एक ही इंडेंट लेवल पर है. इंडेंट समझते हो ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसको इंडेंट कहते हैं. स्पेस. इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का यानी कि बिगनिंग से लेकर टेक्स्ट की बिगनिंग से लेकर यहाँ तक का जो स्पेस है वो सबके बीच में बराबर है. तो ये एक ही इंडेंट लेवल पर है. ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, दीज आर फॉर्मिंग अ ब्लॉक. दीज 3 स्टेटमेंट्स आर फॉर्मिंग अ ब्लॉक. तो यहाँ कहता है इंडेंटेशन मीन्स एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर राइटिंग एनी स्टेटमेंट. ये एक्स्ट्रा स्पेस है किसी स्टेटमेंट को लिखने से पहले का, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, इसको इंडेंटेशन कहते हैं. जनरली 4 स्पेस टुगेदर मार्क्स द नेक्स्ट इंडेंटेड लेवल. वो आप टैब की से जब प्रेस करते हैं तो 4 स्पेस आता है आगे, उसको आप इंडेंटेशन लेवल कहते हैं. ठीक है, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर. अगर इंडेंट आप नहीं दे रहे हैं किसी वजह से, मान लीजिए आपने एक लेवल पर कुछ बनाया और दूसरे लेवल पर इंडेंट देना था और नहीं दिया, तो वो एग्जीक्यूशन का टाइम बदल जाएगा उसका. ठीक है, अभी कैसे वो प्रैक्टिकली आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे. सिर्फ आप ये समझिए अभी कि इंडेंटेशन होता क्या है. इंडेंटेशन क्या है, दो स्टेटमेंट्स सेम लेवल पर होते हैं, वो सेम ब्लॉक बनाते हैं. और ब्लॉक बनाने के लिए हमें उन्हें किसी पर्टिकुलर स्पेस जो दिया होता है हमने बीच में, बिगिनिंग ऑफ द लाइन से हमने जो स्पेस दिया होता है उसको इंडेंट कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी वेरिएबल्स. हम तो प्रोग्राम बना चुके हैं इसलिए वेरिएबल्स भी हमें पता है ना. आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया था ना, एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस. तो वेरिएबल आप फेमिलियर हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझ लेते हैं. डेफिनेशन तो हमें पता होनी चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में उन्हें राइट कर सकें, लिख सकें, आंसर तो कर सकें. तो वेरिएबल्स आर नेम्ड टेम्पररी लोकेशन used to store values that can further be reused in calculation, printing results. वेरिएबल क्या है, आप अपनी मैथ्स से समझिए. मैथ्स में आप एक्सप्रेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखते हैं. अब नाउ x एंड y मे बी एनीथिंग. ठीक है, वाई दिस फॉर्मूला, आप 2 + 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन इन दैट केस इट बिकम्स ओनली 2 + 3. But when you write x plus y whole square, then it becomes the x and y value may be as per the user choice. Whatever value user want, user can put. X may be 2 or y may be 3, or x may be 5 or y may be 7, or x may be 9, y may be 10. Okay. So because these are varying according to the choice of the user, so these are known as variable. Variable are named temporary location used to store values. Yes, ये temporary location मेमोरी में जो है लोकेशंस मार्क की जाती हैं जब हम कोई नाम देते हैं वेरिएबल का. सपोज हमने लिखा x इज इक्वल टू 10 या num इज इक्वल टू 100, तो num जो है वो रैम मेमोरी के अंदर मार्क हो जाएगा. हालांकि num के नाम से अंदर जगह नहीं बनेगी. हर वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होता है, आइडेंटिटी होती है. ठीक है, ईच वेरिएबल मस्ट हैव इट्स ओन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे वो भी डिस्कस करेंगे. उसका एक टाइप होता है और उसकी एक वैल्यू होती है.
टाइप मतलब डेटा टाइप, वैल्यू मीन्स जो असाइन किया गया है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अब ये जो नाम दिया है हमने, ये क्या होता है कि हमारे द्वारा दिया गया नाम है ना, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। वास्तव में इसका नेम ये नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको पाइथन स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आपको समझ में आए। ठीक है, पाइथन स्क्रीन पर चलते हैं हम। देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 100, अब यहाँ हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे id ऑफ x। id मतलब एड्रेस, मेमोरी में ये कहाँ स्टोर हुआ है हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने id ऑफ x निकाला, ये आया, ये मेमोरी में इस लोकेशन पर स्टोर है। मेमोरी क्या है, कंटिन्यूअस ब्लॉक होते हैं, और कंटिन्यूअस ब्लॉक्स के अंदर कहाँ पर ये एक्स स्टोर है ये हमें नहीं मालूम। तो ये जानने के लिए हमने id ऑफ x निकाला। तो ये इस लोकेशन पर स्टोर है, और इस लोकेशन को हमने क्या नाम दिया है, हमने नाम दिया है x। हम x करते हैं तो 100 आ जाए। हमारे लिए यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये x है, बट कंपाइलर या इंटरप्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, ये एड्रेस लोकेशन। आईडी से हम एड्रेस लोकेशन निकाल सकते हैं। आई थिंक सो इट्स क्लियर नाउ। तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नेम्ड टेम्परेरी लोकेशन, ठीक है, विच इज यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यूज। और हर वेरिएबल की अपनी एक टाइप होती है, डेटा टाइप होती है। एक आईडी डेटा टाइप निकालने के लिए टाइप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप है, आईडी है, और उसकी एक वैल्यू है। जैसे हमने नम की वैल्यू क्या दी है 100, वैल्यू क्या दी है जेम्स, और इनका डेटा टाइप नम का डेटा टाइप इंटीजर, और नेम्स का डेटा टाइप स्ट्रिंग। इसी तरीके से नम की आईडी क्या होगी ये हमें नहीं मालूम, ये किस में हम डाल देंगे, आईडी ऑफ नम फंक्शन लगाकर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेम्स की आईडी भी हम निकाल सकते हैं अगर हमने ये वेरिएबल कंपाइलर पर या इंटरप्रेटर पर बनाए होंगे तब। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज नोट। क्या नोट दिया है, पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट अस एनालाइज बाय एग्जांपल। ओके, चलिए देख लेते हैं। सी प्लस प्लस में क्या करते थे हम, रेडियस इज इक्वल टू 100 करते थे। तो वो कहता है ये मान लीजिए 100 मेमोरी लोकेशन पर है। नाउ वी अगेन असाइन न्यू वैल्यू टू रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 500, देन नाउ द मेमोरी एड्रेस विल स्टिल बी सेम, ओनली वैल्यू विल चेंज। यस, ये होता है। इसको म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी से जोड़ते हैं। ये कंसेप्ट अभी आगे आएगा वैसे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको थोड़ा बता दें। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप रेडियस वैल्यू डाल रहे हो पहले 100, ठीक, और फिर दोबारा रेडियस, तो वो रेडियस एक वेरिएबल है उसके अंदर 100 डाल दिया गया। दूसरी बार फिर आपने रेडियस इज इक्वल टू 500 दिया, तो अब ये 100 ओवरराइट हो जाएगा, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या सीन बनता है, पाइथन में मैं आपको इससे दिखाऊं, देखता हूँ इस स्लाइड में सही से दिखाया हो तो। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पाइथन। यस, ये देख लीजिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू 100, ओके। अब हमने लिखा रेडियस इज इक्वल टू 700, तो इन दोनों की मेमोरी एड्रेस अलग अलग है। मतलब पाइथन में पहले 100 था, वो इलिमिनेट नहीं होगा, वो ओवरराइट नहीं होगा, बल्कि 700 और असाइन हो जाएगा। इस तरीके से पाइथन जो है, रेडियस जो है वो दो मेमोरी लोकेशन पर ये वैल्यू एड स्टोर है, और ये उसको पॉइंट कर रहा है। नाउ यू कैन सी दैट द इन पाइथन ईच टाइम यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू वेरिएबल, it will not use the same memory address and new memory will be assigned to variable. In Python, the location they refer to changes every time their value changes. This rule is not for all type of variables. Yes, of course. वही मैंने बताया था ना, कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। म्यूटेबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज किए जा सकते हैं, और इम्यूटेबिलिटी वो वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते, मतलब जिनमें वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, तो चेंजेस नहीं किए जा सकते, सॉरी। तो इंटीजर जो है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये समझ नहीं आया क्या? तो साथियों, फिर अब हमने आज जो भी कुछ सीखा है, मुझे उम्मीद है आप आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
हमने आज सीखे ऑपरेटर्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, इंडेंटेशन, कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स हमने सीखे, इंडेंटेशन के बारे में सीखा, फंक्शन हमने स्मॉल फंक्शंस हालांकि बनाना तो नहीं सीखा है, लेकिन हाँ एक फंक्शन का कोड लिखा है छोटा सा। तो इनको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखेंगे। ठीक, तो आज इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और मुझे लगता है कि आप इसे एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद आप सभी का मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल